Hello Didi, Hi, Alok. how are you? I'm fine. How are you? I'm perfectly fine. First of all, very thanks to giving me your valuable time. It's my pleasure. Okay, so let's start our podcast for my viewers. Let me introduce Gauri Sharma Didi, who is with me right now. She is my senior from W Professional University, and right now she got placement in Microsoft. I know it's really big thing, and for me also, like I'm hosting her in my podcast show. I'm really happy and excited. So let's start our podcast. I'll ask some questions like how she joined Microsoft and how is her overall experience in LPU. So let's start our podcast. So yes, Didi, we can start. Okay. Okay. Thank you for the wonderful introduction that you've given. Yeah, of course, we can start. Yeah, so please Didi introduce yourself to my viewers. Of course. As he said, my name is Gauri Sharma, and currently I'm pursuing BTech Computer Science and Engineering from Lovely Professional University. I'm from batch 2020, and I will be graduating this year itself. I got recently selected for the MNC called Microsoft, and I will be joining it there soon. It is a full time opportunity. Thank you. Okay, so Didi, it sounds really good. Like whenever you are mentioning you are in Microsoft, it's also my dream company. So yeah, let's start my first question. So how was your overall experience in LPU? If I'll talk about my overall experience, so first of all, if we start with the first year, so for 2 years we had an online classes because of the COVID, of course, everyone knows. And then, secondly, as we all know, the 2 years were very dangerous for everyone. So the colleges were closed, and we had only opportunities for learn online from YouTube or our teachers that are teaching. So it was very hard time for us. We didn't enjoy our first 2 years of college, which were about for fun. But nevertheless, we went to college in March 2020. Like for me, I went in 2022. March, but it was opened in, I guess, December, for in both the modes, in online and offline mode. So my parents were a bit concerned, so they sent me a little late. I went there in March, and then we participated in several events. I got lucky to work in a event that is huge for LPU called One India event. We had fun during that event. We learned so many things. We made new friends, and it was a total good learning there also. So this is I can say this is the very good thing of about LPU, that they provide us not about the skills and everything. It is the, of course, we are there to study. So how to develop your skills and how to learn technical things is one thing, and how to make connections and talk to friends, or how to build your connections, how to learn interpersonal skills. These are the things which we can learn through events. So LP provides so many opportunities to learn through events and to participate in events, because there are several events that happens here. So it is a very good thing that happened to us, and yeah, of course, we had a lot of fun of Okay, whatever time we nice. got. Yeah, exactly. Okay, so Didi, my next question is like as you say like you you guys wasted 2 years in pandemic. Okay, so like after that when you came to LPU in your third year and after that uh, very soon you got placement Yeah. in Microsoft. So like how it all happened, like how much you prepared, and like from when you started your preparation for getting placement. Yeah. So, as I said, due to COVID, we were 2 years at home in 2020 March. In fourth semester, I went there, and in the starting of the uh, for for example, when I went, I didn't knew about anything such as DSA or front end skills or back end skills, what are required and everything. So I had no clue about it. But as soon as I got there, I came to know about DSA. So I just started working on it, focused on it, with spending some times in fun and everything. But what is one good thing is that LP provides us opportunity to get placed in third year itself. So we got a little less window to prepare, but of course, as I got to know about it, I started as soon as it's possible. And if one is doing with full of dedication, the DSA
most of the DSA things can be done in 1 year, or in 1 year you can prepare well for placements, is what I can see. By in first year and second year you can explore what are the skills, or what are the things that has your grip, which things you are interested in, and then from second year onwards you can start working on particular things by which you want to get entered into this corporate world. So this is what I can say. Okay, okay, nice, nice. So Didi, like how much DSA is important for getting placement in big giant companies? Yeah, Like so like मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ. सो लाइक अगर हम कुछ डीएसए कर रहे हैं जैसे एरे स्टैक क्यू ट्रीज डीपी सर, मतलब कहाँ तक हम लोग कर ले कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, एंड सो आपने इसका कहाँ ना, तक किया था? हाँ जी, आपने यस, कितना डीएसए किया था बिफोर गेटिंग प्लेसमेंट? ऑफ कोर्स आप फॉर एग्जांपल देखो, जो कंपनीज होती हैं उनका सबका क्राइटेरिया लाइक ओपनिंग गेट जो होता है जिससे आप एंटर करोगे वो डीएसए ही होता है, बिकॉज आजकल स्किल्स मतलब आप जैसे रिएक्ट की बात कर लो या जेएस किसी की भी बात कर लो, जो भी चीज़ें आज बहुत इवॉल्व हो रही हैं, मतलब जो हमारी स्किल्स हैं, फ्रंट एंड हैं, बैक एंड है, इनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं. सो इन पे डिपेंड होकर कोई भी इंटरव्यू और आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता है. इस वजह से डीएसए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको बेस बना के, या हर कोई कंपनी उसको बेस बना के आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करती है, एंड एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. सो डीएसए, इफ यू आस्क मी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज, सो इट इज द only key to get into any company. That is what for sure I can say. And the basic knowledge of DSA with good front end skills can particularly get into you for front end. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर सिर्फ फ्रंट एंड में जाना है, आप कह रहे हो आपको फ्रंट एंड का सब कुछ आता है, लेकिन आपको डीएसए में वीक हो आप, तो आप उसको एरेज तक या लिंक लिस्ट, बेसिकली बाइनरी सर्च तक आप पूरा अच्छी तरह कर लें, तो वो आपका एक गेटवे बन जाता है कि आपको उतना ही आता है, आप इंटरव्यू को बोल सकते हो यहाँ तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आप इतना मेरे से पूछ लो. बेसिकली इंटरव्यूज़ में क्या होता है, आपको बताना होता है, वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या आता है, आपका कहाँ तक ग्रिप है. लेकिन अब अगर आप बोल रहे हो कि आपको ट्रीज़ या ग्राफ तक आता है, तो मैंने ट्रीज़ या ग्राफ तक पूरा प्रिपरेशन किया हुआ था, तो मैंने उनको वही बताया जो मुझे आता था. मैंने उनको बोला मुझे ग्राफ तक ही आता है, उसके आगे भी हायर लेवल टॉपिक्स होते हैं डीएसए में, मैंने उन पे वर्क नहीं किया था. तो वो क्लियरली आपसे पूछते हैं कि आपने क्या-क्या स्किल्स हैं, आपको डीएसए में कितना क्या आता है. तो जब आपको वो पूछते हैं तो आपको ऑनेस्टली बताना है, ये नहीं बताना है कि आपने ट्रीज़ कभी पढ़ा ही नहीं और आप उन्हें बता रहे हो कि नहीं मुझे ट्रीज़ आता है, तो फिर ऑब्वियसली आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको नहीं आएगा. तो जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, या जो क्वेश्चन जहाँ तक जिस टॉपिक के आपने बारे में पढ़ा है उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए. और अगर आप पर्टिकुलर किस फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड या कोई ऐसी चीज़ों में जाना चाहते हो, या फिर डेवलपमेंट एरिया में ही जाना चाहते हो, आप फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हो, तो आपको एंड्रॉयड के साथ बेसिक डीएसए आना ज़रूरी है. ओके, ओके. सो दीदी लाइक आपका माइनर क्या था? मेरा माइनर था फुल स्टैक डेवलपमेंट. ओके, नाइस. मेरा भी फुल स्टैक है, फाइनली मिल गया मेरे को भी फर्स्ट प्रेफरेंस. और दीदी आपका लैंग्वेज? मेरा लैंग्वेज था C++. आई फाइंड इट वेरी गुड. कि व्हाई नॉट जावा? एक्चुअली जावा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड वाज. एक बारी क्या होता है एलपीयू में ना, हर 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 सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं अलग अलग. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ था, आपको कोर सब्जेक्ट्स जो भी बेसिक इंजीनियरिंग के होते हैं वो इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका मन करे स्विच करने का कोई और इंजीनियरिंग में, तो आप इजीली कर सकते हो. फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपके पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ओरिएंटेड कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं. तो जो सेकंड सेम था उसमें सी आई, फिर उसके बाद थर्ड सेम में हमें C++ मिला. तो जब मुझे C++ मैंने पहले एक्सप्लोर कर लिया, इसलिए फिर मुझे वो ज़्यादा पसंद आने लगा. तो फिर वहाँ से मेरा वो पर्टिकुलर गोल बन गया. मैंने जावा फिफ्थ सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में करी थी C++ के बाद, तो वो मुझे उतना फोर्थ सेम में की थी मैंने. और सी मैंने थर्ड, सी भी सीखा था, C++ भी सीखा था, तो दोनों सिमिलर थे. तो मेरा ज़्यादा ग्रिप C++ में इसलिए बैठ गया क्योंकि मेरा एक्सप्लोरेशन पहले उसमें हो गया, जावा में फिर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया. ओके. एंड दीदी आपने डीपी भी किया था, डायनामिक प्रोग्रामिंग? डीपी किया था, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इतनी मतलब उस एरिया में इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि मुझे वो उतना खास इंटरेस्टिंग नहीं लगता था. मतलब मुझे सारी चीज़ें थॉरली आप अगर अभी पूछोगे तो वैसे मुझे कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ पता है, बट वो कोड करने में उतना मुझे डीपी में इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मैंने डीपी थोड़ा अवॉइड किया था. नॉलेज पूरा था कि अगर आपको इंटरव्यू पूछ रहा है
थियोरेटिकली या कुछ भी इस तरह से, तो आप ब्लैंक पॉइंट ब्लैंक ना हो जाओ उस टाइम पे, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने उतना मेंटेन करके चला था, बाकी इतना मुझे डीपी में इंटरेस्ट नहीं था उतना। ओके, मीन्स अगर विदाउट डीपी भी हम चाहें तो अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है स्टैक क्यू एरे हाँ ट्रीज तक, तो ग्राफ तक तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, आप कोई भी अच्छी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है। बट आपको ऑनेस्ट होना होगा इंटरव्यू में कि आपको कितना आता है, और हर चीज़ का ओके। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर आपको कोई इंटरव्यू कोई चीज़ पूछ रहा है, तो आप ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमने कभी सुना ही नहीं ये चीज़, तो वो नहीं होना हम्म। चाहिए। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, आपको जितना आता है आप उन्हें उतना ही बताइए, वो उतना ही आपको ले लेंगे। और हर इंटरव्यू से आपको एक फीडबैक मिलता है कि अच्छा ये स्किल आपको आनी चाहिए थी, अच्छा ये नहीं आता था, तो क्या करना चाहिए जिससे आप आगे और इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो चीज़ हम्म। उस तरह से इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ओके। एंड दीदी आपने डी वो क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी किया था? कॉम्पिटिटिव कोडिंग एज सच लाइक इतना टाइम नहीं था, डायरेक्ट प्लेसमेंट्स ही आ गए थे, तो थोड़ा बहुत किया था। बट देन उसके बाद तो प्लेसमेंट्स का सब सिनेरियो शुरू हो गया था, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो आई गेस 15 डेज और 20 डेज मैंने किया था। हम्म। मेरा बैच भी एक्चुअली वही था। लाइक आपको पता ही होगा अब, लाइक सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं, और एलपीयू क्या करता है ना, 2 बैचेस बनाता है आपकी, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए ही प्लेसमेंट बनाई किया। जाती हैं। 2 सेपरेट बैचेस होती हैं, उसका एग्ज़ाम होता है एक। आई गेस सेकेंड ईयर के बाद ही होता है वो एग्ज़ाम। आपका हो गया होगा या पता नहीं मुझे नहीं अभी अभी। होने वाला है, वही मैं आपसे पूछने वाला था हाँ। नोटिफिकेशन, मतलब कुछ मेरी सीनियर से बात हुई तो उन्होंने ऐसा बताया हम्म। था कि एक सीपी होता है कॉम्पिटिटिव हम्म। प्रोग्रामिंग, उसमें जो बच्चे जाते हैं उनका 10 लाख और अबव कंपनीज के लिए वो बैठ सकते हैं, हम्म। अदरवाइज नॉर्मल पैकेज। नहीं, एक्चुअली ऐसा तो एज सच कुछ नहीं होता। लाइक इस साल तो ऐसा कुछ फॉलो नहीं हुआ था। उन मतलब ये हम्म। रहता है कि उन 2 बैचेस में आपको बेसिकली सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, मतलब कोडिंग पोर्शन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम्म। वो 2 पोर्शन, मतलब आपका वो ज़्यादा होता है, लाइक सीपी ज़्यादा होता है उन बैचेस में, और मेनली कोडिंग पे ही फोकस होता है उसमें। तो आपको अगर उनमें एंट्री लेनी है उस 2 बैचेस में, तो आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, वो पूरा बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ही होता है। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको लाइक हर चीज़ का बेसिक क्लियर है ना, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो कोई भी चीज़ हो। सीपी भी इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट वही है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी रोज़ कोडिंग करने के लिए। हम्म। एंड आप कौन से प्लेटफॉर्म में कोडिंग करते थे दीदी अपने टाइम पे? मैंने लीड कोड पे करा है काफ़ी ज़्यादा। मैंने कोड फोर्सेस पे करा है, हैकर रैंक पे करा है, हैकर अर्थ पे करा है, और एक दो और हम्म। होंगे मुझे नाम याद नहीं है। सो लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, बस क्वेश्चन थोड़ा, जैसे कभी कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, आपके 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहाँ ईजी सा कर लो, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। फिर आप आके वही हाँ। वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तो उससे क्या कि दिमाग आपका एक अलग लेवल पे होता है कि अच्छा वो वाला क्वेश्चन अभी कर लिया, चलो मतलब हमें आता है, हम कर सकते हैं। तो फिर वापस जाके उस क्वेश्चन को करते हो, तो वो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाती है उस तरह से। तो इस तरह से मैंने फॉलो किया था। ओके। एंड दीदी आप अपने टाइम पे पढ़ती कहाँ से थी डीएसए, रेफरेंस क्या था आपका? मेरा यूट्यूब पे मेनली था स्ट्राइवर, मैंने उसको ही फॉलो करा है, क्योंकि आई स्ट्राइवर भैया। बिलीव हाँ उनसे बेटर कोई भी नहीं है। और एक्चुअली जो भी डीएसए आता है वो उधर से ही सीखा है मैंने, जो भी है, क्योंकि मुझे उनका वीडियोस एकदम कॉन्सेप्चुअल वाइज, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन हिज वीडियोस, एंड दैट इज़ फॉर फ्री। सो कोई प्रचार नहीं कर रही मैं उसका, लेकिन अगर आपको समझ आता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली लाइक अभी मैं लास्ट पॉडकास्ट जब किया था एक सीनियर के साथ वासु हम्म। गोयल, तो हाँ जी। मुझे उस पॉडकास्ट में पता चला था टेक यू फॉरवर्ड चैनल के बारे में, हाँ जी। स्ट्राइवर भैया। एंड लाइक आपको मैं बता रहा हूँ अभी स्ट्राइवर भैया हम लोग के कैंपस में आने वाले हैं फॉर अ सेमिनार। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम तो है नहीं मिस करने के, मतलब है नहीं, उसे मिस ही करेंगे। आप लोग एंजॉय करिएगा, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो बहुत ही स्किल्ड है, मतलब आई बिलीव उनसे बेटर टीचर अभी कोई है नहीं इस फील्ड का। सीरियसली उनका कॉन्फिडेंस हम्म। लेवल भी हाँ, लाइक जस्ट अमेजिंग। उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है ना इज़ माइंड ब्लोइंग। एंड एक ही चीज़ है बस, उनकी कंसिस्टेंसी। उन्होंने पहले लर्न करा, फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, तो टाइम के साथ और अच्छा होता गया। तो अब उनका वीडियोस हम्म। एकदम फैब है, मतलब पेड कोर्स से भी बेटर है वो फ्री कोर्स यूट्यूब पे आप अगर फॉलो करें तो। हाँ। अच्छा दीदी जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, लाइक हम लोग जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले बहुत टाइम तो लगता है बेसिक्स क्लियर करने में, हम्म।
उसके बाद जैसे हमारा बेसिक्स अगर जब पूरा क्लियर कर ले, उसके बाद हमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जाना चाहिए, और स्ट्राइवर भैया की जो चीट शीट है वो फॉलो करना चाहिए, कि पहले पूरा बेसिक्स क्लियर करें हम। एक्चुअली क्या है ना, कभी भी आप देखो, आप अगर ऐसे बोलोगे ना कि हम मुझे ये बेसिक एकदम क्लियर हो गया या मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एरे सीखा, तो आप एरे के पहले बेसिक थ्योरेटिकली चीज़ें सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए थियोरी का जो भी कुछ होता है, इंडेक्सिंग वगैरह कैसे स्टार्ट होता है, क्या पोजिशनिंग है, सब कुछ आप वो सीख लीजिए। उसके बाद आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। स्ट्राइवर की शीट है, और स्ट्राइवर का थोड़ा बेसिक से एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाता है, तो आप उनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट पहले आप देख-देख के करेंगे, फिर आप बिना देखे करेंगे। एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो बेसिक्स आपको थियरी वाइज़ पहले एक बार सारा पढ़ लेना है, सारे टॉपिक्स के बारे में। उसके बाद थियोरेटिकल के बाद जब आप प्रैक्टिकल पे आते हो, तो आपको साथ-साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो एक एक तरह से बेटर रहता है, क्योंकि कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते, बट आपको एक एक पॉइंट पे स्टार्ट करना होता है, और उस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा भी। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। पहले मैंने ये सोचा था कि मतलब सारा कोर्स, मतलब सारा ही जितना है वो पूरा बेस क्लियर कर लूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगी। बट किसी ने मुझे बताया कि साथ-साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, और जो चीज़ आपको सीखनी है वो आप साथ-साथ में सीख सकते हो। तो फिर मैंने उसको फ़ॉलो किया, तो इट हेल्प्ड मी अ लॉट। ओके, लाइक अभी मुझे ऐसा सुनने के बाद लग रहा है कि मैं शायद रॉन्ग डायरेक्शन पे हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ अभी अभी सिर्फ जैसे मैं जावा कर रहा हूँ, मेरा मेन लैंग्वेज जावा है। हमारे आईसीएसई बोर्ड में 9th से ही हम लोग को जावा पढ़ाया जाता था। हुँ, हुँ। सो मैं सोच रहा हूँ पहले कि पहले पूरा जावा अच्छे से कर लूँ, हाँ। उसके बाद फिर डीएसए स्टार्ट देखो, करूँ। यहाँ पे ना 2 चीज़ें अलग हैं। आप जावा अच्छी तरह सीखना, आपने बोला डीएसए के कॉन्सेप्ट्स, अब जावा एक लैंग्वेज हो गई, तो आपको पहले जावा ही सीखनी है पूरी अच्छी तरह से। हाँ, जावा के साथ-साथ आप थियोरेटिकल डीएसए सीख सकते हो, बट आपको एक लैंग्वेज पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, आपको लैंग्वेज अच्छी तरह आनी चाहिए। तो आप वो एग्जैक्टली। लैंग्वेज को कवर करिए, पहले अच्छी तरह ल लैंग्वेज सीख लीजिए। अगर लैंग्वेज पे एक बार ग्रिप आ गया, हाँ, लैंग्वेज के हाई लेवल कॉन्सेप्ट पे मत जाइए अभी, वो आपको डीएसए के साथ-साथ हो जाएँगे। बट एक बार बेसिक पूरा अच्छी तरह, जैसे लूप्स हो गया, बेसिक सिंटैक्स हो गया, और जैसे मान लीजिए ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो सब आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद का जो रहता है, जो भी कुछ है, वो आप डीएसए के साथ-साथ कर सकते हैं। तो आप एक बार लैंग्वेज तो आपको क्लियर करना ही चाहिए। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। बट डीएसए में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप डीएसए के थियरी क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, या फिर उसको करके कह रहे हैं मुझे सब आ गया, या फिर उसको कह के कह हाँ। मतलब उसको ही क्लियर करे जा रहे हैं। तो वो मत करिए, डीएसए के थियरी भी पढ़िए, और थियरी के साथ प्रैक्टिकल तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। और लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपको पहले लैंग्वेज ही सीखनी चाहिए। डीएसए का थ्योरी जो है वो तो समझ आ जाता है, लेकिन जब हुँ। उसको कोड में अप्लाई करते हैं वो थोड़ा टफ रहता है। हाँ, दीज़ 2 आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, लाइक पोल अपोज़िट हैं दोनों को। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना हर चीज़ को हार्ड ही होता है। तो आप अगर लैंग्वेज फ़ॉलो कर रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसे तुम लैंग्वेज जावा सीख रहे हो, तो पहले अच्छी तरह हम्म। जावा सीख लो। एक एक पॉइंट तक आपको समझ ही आ जाएगा खुद से कि हाँ, मुझे ये जावा का आ रहा है। जावा के भी ऑफ कोर्स क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, फंक्शंस के होते हैं, लूप्स के होते हैं। उन पे आप हम्म। एक बार कर लीजिए। उसके बाद आप अगर ये फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देंगे डीएसए को, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके। सो दीदी, इससे मतलब ये तो समझ आ रहा है कि मतलब अगर बड़े कंपनीज में जाना है प्रोडक्ट बेस्ड, तो डीएसए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके। सो बस मैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में हो, तो जिसको माइक्रोसॉफ्ट में अगर सिलेक्शन चाहिए, तो डीएसए के अलावा और क्या क्या टूल्स और स्किल्स उसको आने चाहिए, प्लीज़ बताइए। एक तो मेन की होती है कम्युनिकेशन। आपको आता सब कुछ है, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या आता है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट की इज़ कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, आपका परसेप्शन, आप कितने स्किलफुल हैं, और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, सब चीज़ का आपको इन्वॉल्वमेंट। बिकॉज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर आप सपोज़ डिबेटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप डिबेट करते हैं, तो कितनी बड़ी ऑडियंस होती है। उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। ये सब चीज़ें नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट, इट विल हेल्प यू इन एनी अदर कंपनी टू गेट अलोंग विद, बिकॉज़ these skills are very important other than technical skills, because if you have knowledge and you don't know how to communicate it, it is very difficult. हम्म। एंड टूल्स वगैरह क्या क्या फिर हमें आना चाहिए? टूल्स सच एज़, अगर आप स्किल्स की बात कर रहे हो, हम्म। टेक्निकल स्किल्स। यस, एग्जैक्टली, टेक्निकल स्किल्स। हाँ, तो उसमें डीएसए तो हो ही गया, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट,
फ्रंट एंड के लिए हो गया बेसिक, उसके बाद रिएक्ट होता है एडवांस, सी हैश डॉट नेट भी हो, सी शार्प डॉट नेट भी होता है, तो वो बैक एंड में आ जाता है। आप उसके लिए उसको भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। नोट जेएस हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, इन्हें आप कर सकते हो। प्लस कोर सब्जेक्ट्स हो गए, कोर सब्जेक्ट्स में सी एन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। एसक्यूएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी को एसक्यूएल मेरे हिसाब से करना ही चाहिए, because lot many questions has been asked in my overall experience of giving interviews in different companies, even in Microsoft. They have asked SQL question in at least one of their rounds. ओके, समझ गया। ओके, सो दीदी, लाइक अब मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइक जैसे अभी आप माइक्रोसॉफ्ट में हो, सो लाइक ये आपकी फर्स्ट कंपनी है कि आपने पहले भी अप्लाई किया था किसी कंपनी में? नहीं, कंपनीज लाइक जैसे एलपीयू में ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम में ही किसी का भी मतलब लकीली हो जाता है काफ़ी लोगों का, बट मेरा नहीं हुआ था। मैंने रिजेक्शंस देखे हैं बहुत सारी कंपनीज, लाइक 5-6 कंपनी तो आराम से, एंड मुझे नंबर याद नहीं है, बट उसमें ये प्रॉब्लम था ना स्टार्टिंग में ही जब हम अप्लाई कर रहे थे, बिकॉज 2023 जैन में, नो फेब में फर्स्ट कंपनी आई थी, तो उसमें अप्लाई करा था, तो तब तो डीएसए इतना आता ही नहीं था, मतलब बेसिक आता था, बट जो क्वेश्चंस आए थे वो थोड़े ऊपर लेवल के थे, मतलब ग्राफ्स और ट्रीज वगैरह से थे, तो वो तब आता नहीं था। उसके बाद अप्रैल मार्च तक अच्छे से सीखा, उसके बाद जब कंपनीज आना शुरू हुई तो फिर कम्युनिकेशंस तो मेरा पहले से मतलब स्कूल टाइम से ही बेटर है, तो वो समझाना ईजी होता था, बट वन ऑफ द अदर रीजन से रह जा रहा था। आई गेस इट वॉज डेस्टिनी, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वॉज कमिंग, बिकॉज वी डिडंट न्यू इट वॉज कमिंग, सो इट हैपेंड। ओके, नाइस। दीदी, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए जब जा रहे होगे, जिस दिन आपका फाइनल इंटरव्यू था, तो आपको क्या डर लग रहा था? एक्चुअली क्या हुआ ना, ये एकदम सडन था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ना, तो आप कहोगे इट इज़ टोटली डेस्टिनी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, उसका ना एक रजिस्ट्रेशन लिंक आया था, और उसकी जो आपको पता ही है जैसे प्लेसमेंट पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है हमें हर कंपनी के लिए, तो जो रजिस्ट्रेशन विंडो था ना, वो लिटरली हाफ डे का भी नहीं था, मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो विंडो ओपन था। तो उसमें क्या हुआ था कि जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए आया था, तो मैंने रजिस्टर कर दिया, बट उसमें एक और लिंक होता है, एक्सटर्नल कंपनी लिंक, वहाँ पे भी आपको जाके रजिस्टर करना होता है कंपनी पोर्टल पे। अब मेरा वो स्किप हो गया था उस टाइम पे, सो आई जस्ट लेट इट गो, एंड आई वाज कमिंग बैक, आई वाज ट्रैवलिंग आई गेस, एंड व्हेन आई रीच्ड होम इन दैट मॉर्निंग ओनली, वी हैड अ व्हाट्सएप ग्रुप दैट वाज मेड बाय हरपाल सर, then he added everybody who has registered on placement portal. Now he told me, like everyone in the WhatsApp group, it was a indication, like warning kind of thing, that we have only 5 minutes, this form is only open for 5 minutes, the form was closed, and I was not able to register it at that time. So sir has asked MS team, and for us he made, let them made us 5 minutes to 5 minutes to open, and then we like submitted it, and that is how it happened. Otherwise I could have skipped it, and I didn't given that much, because when such big company comes na in your, like after facing 4-5 rejections, you feel like अरे यार इसमें कहाँ ही हो जाएगा, रजिस्टर कर देते हैं। तो उसके बाद जब वो फॉर्म फिल करना होता है ना, तो वो फॉर्म फिल करना ऐसा था कि कल तक तो कर ही लेंगे, क्योंकि एक दिन का टाइम तो होता ही है, बट इसमें क्या हुआ, टाइम पीरियड ही इतना, विंडो ही इतना शॉर्ट था कि समझ ही नहीं आया कि कब रजिस्टर करना है और कब बंद हो गया। तो सर ने जब 5 मिनट का टाइम अलॉट किया, उसमें जल्दी से मैं घर पहुंची ही थी, मतलब बैग रख के बस बैठी थी, तो उसके बाद तुरंत मैंने जल्दी से फॉर्म ओपन करा, उसको फिल करा, सबमिट करा, एंड देन इट थिंग्स हैपेंड इन अ वे दैट हैपेंड। सो जब फाइनल राउंड था, जैसा कि तुमने पूछा, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मतलब क्या हुआ था ना, एक दिन में हमारे 3 इंटरव्यूज़ हुए थे, और हमारा एक इंटरव्यू नेक्स्ट डे था, तो उसके लिए सिर्फ 3 बच्चे अच्छा। सिलेक्ट हुए थे, और मतलब टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, टेक्निकल 3, फिर उसके अच्छा, बाद एक होता है, टेक्निकल राउंड कितने होते हैं? आई गेस हमारे 2 या 3 हुए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 या 3 हुए थे, और लास्ट था हायरिंग मैनेजर सेम राउंड था। सेम डे सॉरी, पे हुए थे सारे कि सेम डे पे हुए थे दीदी, कि हाँ अलग हाँ अलग हाँ, डे पे? सेम डे पे हुए थे टेक्निकल इंटरव्यूज़। हायरिंग मैनेजर राउंड जो था वो नेक्स्ट डे पे हुआ था, और उसके लिए मतलब वो रात काटना इतना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज योर माइंड इज जस्ट लाइक होपिंग फॉर बेस्ट, एंड यू नो दैट ओनली 3 कैंडिडेट्स आर लेफ्ट, एंड नाउ
how many they will select, if they will select it or not, they will select us or not. It kind of a very confusing and a very stressful situation at that time, but nevertheless we faced it. And next day we had our interviews. So the timing also got shifted, like it was getting delayed and delayed and delayed. So we were very afraid that if it went, because next day was Saturday Sunday, so if it didn't happen that day, तो 2 दिन गए, सैटरडे संडे तो होगा ही हम्म, नहीं, तो मंडे होना था, तो उतना स्ट्रेस और सहना तो वो बहुत इम्पॉसिबल था सोचने में, बट किसी तरह से उसी दिन अरेंज हो गए, हम तीनों के इंटरव्यूज़ हो गए थे, उसी दिन एचआर इंटरव्यू मतलब हायरिंग मैनेजर राउंड हो गया था। उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, 2 दिन छुट्टी हो गई, तो अब रिजल्ट्स के लिए वेट ना हो, क्योंकि आप एक बार दे चुके एग्ज़ाम, अब उसके बाद आपको रिजल्ट चाहिए कि और इंटरव्यूज़ में तो इतना वो होता है, मतलब आप इतने ब्रेथलेस हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता आप क्या करो। तो उसके बाद 2 दिन तक ऐसे ही था, खाना खा रहे हैं, कहीं ध्यान है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर 2 दिन तो हो गए, 2 दिन के बाद इतना टेंशन, इतनी टेंशन। थर्ड डे और फोर्थ डे, आई थिंक मंडे और ट्यूसडे, on 23rd of October, I don't know the day. On that day we got the results, and we firstly we two were confirmed, me and one other guy, and then lastly another guy was got confirmed the next day, I guess. okay, nice. It was quite interesting. So Yeah. अच्छा, आपको याद है मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे थे टेक्निकल राउंड में? मतलब एरे के थे uh, कि ट्री के थे, किसका था वो क्वेश्चन? यार ऐसे मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, बट टॉपिक हम्म, वाइज पूछे तो उन्होंने मेनली सारी लैंग्वेजेस लाइक सी पूछा था, सी प्लस प्लस, जावा, और काफ़ी लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस थे, कोर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस थे, डेटाबेस के क्वेश्चन थे, और I guess SQL was main. SQL, they asked 3 to 4 question in every round. So SQL was the main key here. They asked personality question in hiring manager round. Uh, the given situation based questions were there in hiring manager rounds. These kind of things were there. ओके। so दीदी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गुड पैकेज, सो Yeah. मतलब कॉलेज में तो बहुत सारे हर सेमेस्टर में न्यू न्यू सब्जेक्ट्स आते रहते हैं, तो Hmm. कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको अच्छे से पढ़े कि अच्छा प्लेसमेंट लगे, लाइक प्लेसमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप और मैंने क्या क्या ऑलरेडी कंपनी बताया, पूछती जैसे है? कंप्यूटर डीएसए। नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग ओके। सिस्टम, हम्म, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ मस्ट। हम्म, एसक्यूएल उसमें उसका ही पार्ट है, एसक्यूएल आप वो हाँ करिए। एग्जैक्टली, हम लोग तो These फर्स्ट three are सेमेस्टर में थे। core, I believe, is what I can remember right now. These subjects are very important, आपको ये तो आने ही चाहिए. Other सी than ओ डी, that, COD, full form, I don't remember. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन समथिंग। Yeah, that is a part of DSA kind of. Yeah, it is also, it is based on algorithms. Yeah, if I'm not बहुत wrong. टफ है वो, बहुत टफ है। हाँ, it is based on algorithms, next snap algorithms, and these kind of algorithms are there in that subject, if I'm हम्म, not wrong. हम्म, Yeah. So that is also important. That is a it is a part of data structure and algorithms. So you have to work on it. It is a very hard subject, of course. ओके। सो दीदी लाइक जब आपको मैसेज आया आपके पोर्टल पे कि लाइक यू गॉट प्लेसमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट, सो मीन्स आपका रिएक्शन क्या था और आपने सबसे पहले किसको बताया? यार अच्छी चीज़ तो यही हुई ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे ना गुजरात से हूँ मैं, तो यहाँ पे नवरात्रि होती है, तो मैं कॉलेज से आई हुई थी यहाँ पे, कॉलेज से छुट्टी नहीं थी, बट मैं छुट्टी लेके आई हुई थी यहाँ पे। अब 23rd को ही मुझे निकलना था, मीन्स मेरी हम्म, ट्रेन थी, बट तब तक रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो आई डोंट नो इट वाज डेस्टिन्ड और व्हाट इट वाज प्लान्ड, एवरीथिंग आई डोंट नो, बट आई बिलीव इन गॉड एंड ऑफ कोर्स इट वाज हिज चॉइस. So the train got cancelled, the ticket was not confirmed, so I have to book the ticket again, and I got ticket for 25th then. So on 23rd I got the result, I was at home, everybody, my family, whole family was there. So in front of everyone, the WhatsApp message of Harpal sir came. Actually we got the confirmation, confirmation was done obviously, but on portal we got it after 2 days or 3 days. So we got the message first from sir's end, and then rest is just, I cannot describe the happiness or the smiles that they have, like my family had on their faces. So it was nice to see, and after all we work hard for them only. So एग्जैक्टली। एंड दीदी लाइक आपका वो जॉब रोल क्या है माइक्रोसॉफ्ट में?
That is right now is non-disclosable. Everybody is. I don't think it is allowed it, so I cannot talk about much. But I'll Okay. inform you as soon as I got joining onboarding. ओके, नाइस नाइस। एंड आपका वो वर्क प्लेस कौन सा रहेगा? Mostly Hyderabad. They came मोस्टली for है। Hyderabad hiring campus, so Hyderabad. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। लाइक Thank you. मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक आई एम रियली हैप्पी आपसे Yeah. बात करके, आपकी ये स्टोरी सुन करके सीरियसली। एंड दीदी लाइक आप अभी कॉलेज का कुछ मिस कर रहे हो? लाइक अगर आप 2 साल तो कोरोना में आपका चला गया, उसके बाद फिर आपने इतना पढ़ा पढ़ा पढ़ा, सो कुछ ऐसा है जो आप मिस कर दिए कॉलेज में? I really don't regret anything in my life, so I believe ऐसा as such कुछ मिस नहीं हुआ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमें जो एंजॉय करना था, जो ट्रिप्स पे जाना था, वो सब हमने उन ईयर्स में भी मैनेज कर ही लिया। सो आई डोंट थिंक एनीथिंग आई एम मिसिंग आउट। हाँ, ऑफ कोर्स इफ आई वुड हैव बीन देयर फॉर 2 years, I could have interacted with seniors, gain some more knowledge in terms of technical thing. I could have improved my skills, coding skills, more and more. So that is what I can say, but other than that everything was fine. ओके। एंड सो दीदी लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। Okay. आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया था ड्यूरिंग कॉलेज, एंड वो प्रोजेक्ट कैसे आपको हेल्प किए आपके सीवी में? प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट बेसिकली होते किस लिए ना कि वो आपकी स्किल्स शो करते हैं कि आपको क्या आता है, कितना आता है। तो वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपका कोई भी इंटरव्यूअर थोड़ा आइडिया लगा लेता है। तो बेसिकली मैंने एंड्रॉयड लिया था मेजर में। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रही थी मैं, तो उस टाइम पे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एक मैंने बेसिक सा एक डाइज ऐप बनाया था, जिसमें तुम लाइक आपको याद है हम बचपन में लूडो खेलते थे, अब तो ऑनलाइन होता है। बट वो जो कार्डबोर्ड वाला था उसमें डाइसेस होते हैं। सो एक वो आइडिया पे एक ऐप डेवलप किया था। और बाकी दो एक बुक हब ऐप डाउन अपलोड मतलब बनाया था मैंने। उसमें क्या था कि वो पूरा लाइक बुक रीडर्स के लिए था, जो भी बुक रीड करते हैं ये था। और फ्रंट एंड पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम आई गेस। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, काफ़ी सारे 10-15 प्रोजेक्ट्स बनाए थे फ्रंट एंड पे भी। मतलब ऐसा ही नहीं था कि सारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स या बहुत ही वाव प्रोजेक्ट्स थे, बट बेसिक नॉर्मल नॉर्मल बनाए थे। बट जो सीवी में डाला था वो पूरा था, मतलब पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का था, फ्रंट एंड भी था, बैक एंड भी था। अच्छा, आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है? बैक एंड मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, बट हाँ, अगर मुझे प्रोजेक्ट पे काम करने दिया जाएगा तो बैक एंड भी मैं वर्क कर लूँगी, क्योंकि नोड जेएस पे मैंने वर्क कर रखा है, मुझे नोड जेएस आता है। बट इतने अच्छे से पूरा बैक एंड नहीं आता है, अभी मैंने उतना वर्क नहीं किया है। ओके। सो दीदी आपका मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट कब से, मतलब वर्किंग डे कब से स्टार्ट होगा? अभी उसका अनाउंसमेंट हो गया? वो डिग्री के बाद होगा, उसका भी अनाउंस नहीं हुआ है। मतलब ऑफर लेटर वगैरह वो सब आने के बाद, जब डिग्री आ जाएगी उसके बाद ही, क्योंकि फुल टाइम है इसलिए हमें इंटर्नशिप नहीं मिली, हमें डायरेक्ट फुल टाइम मिला है, तो उसके लिए डिग्री के बाद ही स्टार्ट होता है वो। अच्छा, आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, लाइक ये फुल टाइम क्या होता है और ये इंटर्नशिप क्या होता है, ये पीपीओ क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है ना कि एक आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 मंथ्स का। तो कुछ कंपनीज़ आपको ट्रेनिंग पीरियड पे पहले ले जाते हैं, आपका वर्क देखते हैं कि आप कैसे कितना कर पा रहे हो। आपको फिर उसके बेस पे जज करके आपको प्रोजेक्ट्स मतलब पीपीओ देते हैं, दैट इज़ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। एफटी बोल लो, पीपीए बोल लो। तो वो पूरा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आपको तब मिलता है। बट हमारे केस में क्या था, जब माइक्रोसॉफ्ट हायर करने आई थी, वो फुल टाइम के लिए हायर करने आई थी। हर कंपनी का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, तो वो हर अलग-अलग तरह से हायर करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट हमारे यहाँ जब आई थी कैंपस में, तो अभी इस बार वो फुल टाइम के लिए आई थी। तो फिर जो हमारा हुआ है सिलेक्शन, वो फुल टाइम हुआ है। फुल टाइम होता है आपकी डिग्री के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट चालू होना, मतलब जैसे आप डिग्री क्लियर आउट कर लेते हो, उसके बाद आपका मतलब स्टार्ट होता है एम्प्लॉयमेंट, और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तभी जाते हो। तो वो सिनेरियो था। ओके। एंड सो दीदी लाइक आपका, जब आप कॉलेज में आए थे आफ्टर स्कूलिंग, तो आपका ड्रीम कंपनी क्या था? मेरा एक्चुअली कोई ड्रीम कंपनी नहीं थी। मेरे को बस ये था कि जो भी पढ़ाएँगे अच्छे से पढ़ना है। और फिर कॉलेज में आके रियलाइज़ हुआ कि पढ़ना, टीचर्स आपको हेल्प करते हैं, क्लास में आप जितना सीखते हो, उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ खुद से सीखना होता है। स्कूल, कॉलेज तो है ही पढ़ाने के लिए, कॉलेज में तो काफ़ी सारे टीचर्स, मेंटर्स हैं ही, बट उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ
खुद से पढ़ना होता है, एक्स्ट्रा यूट्यूब हो गया या कोई भी सोर्स हो गया ऑनलाइन, कितना कुछ है आज तो बस उस तरह से किया। और तो मतलब ऐसा एज सच कोई कंपनी नहीं थी कि ये ड्रीम कंपनी है या वो ड्रीम कंपनी है। हाँ, पैकेज का क्राइटेरिया ज़रूर था कि मतलब 8 से 10 लाख या उससे ऊपर का हो तो ही बेटर है, अगर वो मिलता है तो। तभी घर में बताने में भी अच्छा लगता है। हाँ, कि एटलीस्ट इतना तो हो ही। सो लाइक अभी आपका मतलब जैसे अभी आप माइक्रोसॉफ्ट में करोगे, ओके हम्म। लीव इट दिस क्वेश्चन, मीन्स ये थोड़ा ऊपर वाला लेवल का था। लाइक मेरा ये था कि लाइक आपको फॉरेन जाने का कुछ सोचे हो कि नहीं? एक्चुअली फॉरेन का मेरे को वहाँ रहने में या शिफ्ट होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंडिया में ही काम करना है। बट अगर फॉर एग्जांपल कंपनी डिमांड करती है, अगर उनका रिक्वायरमेंट है तो हम मेरे को वहाँ जाके काम करने में कोई दिक्कत नहीं है फॉर some period of time. I'm okay with it. So as per company requirement, it depends upon them. If they feel we are doing good and they are having some vacancies or something like that, if they want to shift someone, then they will. So it is that is not the problem. It depends upon the situation and the opportunity that we will receive. ओके नाइस। सो मैम लाइक आप उस पर भी काम किए थे रिसर्च पेपर पे? या रिसर्च पेपर पे काम किया था। टॉपिक मत पूछना क्योंकि बिल्कुल याद नहीं है अभी मुझे। बट रिसर्च पेपर पे काम तो किया था। लाइक उस टाइम पे प्लेसमेंट ड्राइव्स चल रही थी और एक कंपनी में मेरा रिजल्ट फंसा हुआ था। लाइक एक दूसरी कंपनी थी, उसका नाम मैं नहीं लूँगी, बट उस कंपनी का रिजल्ट भी आने ही वाला था। तो रिसर्च पेपर और वो कंपनी के इंटरव्यूज़ मैंने साथ ही में दिए थे, इसलिए मुझे उसका नाम मुझे पता ही नहीं है टॉपिक क्या था मेरा रिसर्च पेपर का। तो मुझे याद नहीं, मैंने उतना ख़ास इतना इन्वेस्ट नहीं किया था अपना टाइम। हाँ, गूगल से थोड़ा इधर-उधर से देख के उसके बारे में नॉलेज गेन करके, क्योंकि प्रेज़ेंटेशन देना होता है और तुम्हें तो पता ही है सारा कुछ वो डिटेल्स में सब कुछ करना होता है। तो वो मैंने किया था, बट अभी मुझे टॉपिक याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया अच्छा, उसको। आपने पब्लिश कहाँ पे किया था, लाइक स्कूप्स में कि कहीं और? नहीं, पब्लिश करने के लिए एक्चुअली हमें बोला नहीं गया था। वो हमें सिर्फ़ ओके। सबमिट करना था और बेस्ट वो शायद पब्लिश करते या समथिंग कुछ ऐसा होता है। तो उन्होंने पब्लिश करना अलाउड नहीं था तब, उन्हें बस सबमिट करना था, तो सबमिट किया था हमने। ओके दीदी, लाइक आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था एलपीयू में? I think my best experience in terms of extracurricular activity, if I'll say, then it was One India event. That event has given so much as a, for example, if I say in terms of confidence, in terms of making connections with people, there were different kind of people from other states. We were in the team of Assam. We came third in that event. We won at third position. We came. We were under Chirag sir's team. So at that time, like I got to know that how to literally talk and get friends or get the connections, और ये समझ में आना कि आप कौन आपका दोस्त है, कौन आपकी जस्ट हाय हेलो वाले दोस्त हैं, या क्या कनेक्शन आप किससे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, या किस चीज़ से आप सीख सकते हो कुछ, या क्या गलत है क्या सही है। तो वो चीज़ें उस इवेंट ने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के लिए था। मैंने तो बहुत लेट जॉइन किया था क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, तो वही उसी का सब ऑर्गेनाइज था। उस टाइम पे मैं इतना जानती थी क्योंकि काफ़ी लेट गई थी मैं, तो लकीली लास्ट के 3 या 4 दिन बचे थे। और वो भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि एलपीयू में गर्ल्स को ना लेट नाइट अलाउड नहीं होता बाहर निकलना, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। कैंपस में भी अलाउड नहीं होता है। तो वो हुआ ये था कि मुझे लाइट नाइफ देखनी थी एलपीयू की, क्योंकि सब कह रहे थे रात रात में बहुत सुंदर दिखता है, रात में बहुत सुंदर दिखता है। तो उस चक्कर में मैंने उसमें एनरोल किया था। बाकी ऐसा कोई एज सच प्लान नहीं था, बट लिटरली आई थिंक इट वाज द बेस्ट थिंग। अच्छा, आप हॉस्टल में ही रहते थे? हाँ, मैं हॉस्टल में रहती थी। लास्ट 1 ईयर 6 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ्स मैं बाहर भी रही, ग्रीन वैली। ओके ओके। सो लाइक आप अपना जब सीवी बना रहे थे तो मतलब उसमें क्या क्या आपने ध्यान दिया, थोड़ा आप मुझे ये बताइए। लाइक हम लोग अगर सीवी बना रहे थे, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए, सीवी कैसा बनाना चाहिए? सीवी में बेसिकली ना आपको प्रोजेक्ट्स क्या-क्या डालने हैं, वो मेन होता है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स उस हिसाब से डालने हैं जो आपकी स्किल्स शोकेस करें। लाइक आपने एक मैनेज मतलब पूरा फुल स्टैक का प्रोजेक्ट डाला है, तो आपको इंटरव्यू ये सोचेगा आपके बारे में कि आपको फुल स्टैक के बारे में सब कुछ आता है, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक। अगर आपने सिर्फ फ्रंट एंड आती है, तो आप सिर्फ फ्रंट एंड का ही प्रोजेक्ट डालें। तो प्रोजेक्ट्स आप
सच में डालें जो सच है, मतलब जितना आपको आता है। जो काफ़ी लोग सीवी को क्या करते हैं, फेक करते हैं, तो उससे क्या वो इंटरव्यूज़ में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्किल्स दिखाओगे, अगर उन्होंने पूछ लिया आपसे, तो आप वहाँ पे फंस जाओगे, फिर आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। सो आई थिंक आपको पहले वो करना आना चाहिए कि आपको कैसे मतलब प्रोजेक्ट्स आप वही डालें जो आपके लिए आपको हेल्प कर सके, ना कि आपको पीछे खींचे इंटरव्यू में। और दूसरी चीज़ है, आप इंटर्नशिप्स डाल सकते हैं जिस पे आपने वर्क किया हो, मतलब कॉलेज लाइफ के साथ साथ आप इंटर्नशिप कर लेते हैं पार्ट टाइम में, तो आप वो डाल सकते हैं। और फिर तो आप वो रहता है एक आपको पावर स्किल्स जो होती हैं आपकी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, या फिर कोई अचीवमेंट, मेनली अचीवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अचीवमेंट्स, जैसे मान लीजिए आप कॉन्टेस्ट दे रहे हैं लीड कोड पे, तो उसमें आपकी रैंकिंग कोई अच्छी आई है, तो वो अचीवमेंट हो गई। या आपने किसी हैकाथन में पार्ट लिया है, आपकी वहाँ पे कोई रैंक आई है, या आपने पार्टिसिपेशन ही डाल सकते हैं, कोई अच्छा इवेंट है जहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन के लिए भी आपने कुछ क्लियर करें राउंड्स, तो वो भी डाल सकते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे डालेंगे तो आपका रिज्यूम थोड़ा बेटर दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। लाइक दीदी, आप अपने टाइम पे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते थे? अ, मैंने आपको बताया ही 2 साल तो वैसे ही निकल गए, उतना टाइम था नहीं। और सिक्स सेम से ही कंपनीज आने लगी थी, आई गेस, यस, 6 सेमेस्टर से ही आने लगी थी। तो 2 सेमेस्टर ही बीच में थे, उसमें एक ही हैकाथन हुआ था, स्मार्ट इंडिया हैकाथन। बट उसमें एलपीयू ने होस्ट किया था, तो मैंने उसमें सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, वॉलंटियरिंग की थी मैंने उसमें, और कुछ मतलब पार्टिसिपेशन नहीं लिया था, क्योंकि एलपी होस्ट कर रहा था, एलपीयू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था आई गेस उस टाइम पे। तो उसमें टीम्स ओके। जाती हैं एलपीयू से। तो उस टाइम पे हमने होस्ट किया था, तो तब हमने वहाँ पे वॉलंटियरिंग की थी, वो अरेंजमेंट्स, और उससे भी काफ़ी कुछ सीखा। वो इवेंट भी बहुत अच्छा था, बट एज सच हैकाथॉन में पार्ट लेने का टाइम उतना मिल नहीं पाया, क्योंकि 2 ही सेमेस्टर्स थे, ऑलमोस्ट एक ही सेमेस्टर था, बाकी तो 4 महीने कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला, मार्च से मई वाला तो। एंड दीदी, आपने कोई इंटर्नशिप भी किया था? मैंने इंटर्नशिप किया था tutens.com से, उसके लिए किया था। उसमें लाइक वेब डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर आपको मतलब पेज के लिए कंटेंट लिख के देना होता है। तो एज अ कंटेंट राइटर या डेवलपर की तरह काम किया था, वेब डेवलपर एंड कंटेंट राइटर की तरह। तो वो आपके आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं, तो उस पर काम किया था। ओके। सो लाइक ये आप कब किए थे, कौन से ईयर में जब आप थे अपने कॉलेज लाइफ में? आई गेस थर्ड ईयर में, थर्ड थर्ड। थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर एंडिंग, ऐसे कुछ। सेकेंड ईयर का नाइस। समर वैकेशन था आई गेस। सो लाइक हम लोग को भी मतलब इंटर्नशिप करना चाहिए, है ना? इंटर्नशिप ज़रूरी होता है? ज़रूरी नहीं होता है, बट अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप कुछ सीख सकते हो, इंटर्नशिप ऑफ कोर्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो अगर आप वो लोगे, अगर आप वो करोगे, तो आपको कैसे लाइफ बैलेंस करनी है, पढ़ाई, और वो कैसे प्रेशर मैनेज करना है, वो आप कर सकते हो। तो उसके ओके। लिए बेटर है। सो दीदी, लाइक आपका CGPA कैसा था? मेरा सीजीपीए अभी फ़िलहाल अब ओवरऑल बना नहीं है, बट इस सेम का रिज़ल्ट अभी-अभी आया है, तो 8.5 है अभी ओवरऑल सीजीपीए। ओके। सो लाइक कितना CGPA इंपॉर्टेंट रहता है, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई करने के लिए? हर एमएनसीज़ लाइक बड़े-बड़े एमएनसीज़ का, तो मतलब हर ही कंपनी का, कोई भी ऐसी कंपनी, आई थिंक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनमें कोई भी कंपनी, या रजिस्टर भी किया है, तो कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं है जो 8+ सीजीपीए मांगी हो किसी में भी। मोस्टली सब 8, 7.5, या मोस्टली 60% 70 मांगते हैं। 7 सीजीपीए इज़ ओके। आप मिनिमम बताओ हमें। हाँ, मिनिमम 7 सीजीपीए, और मैक्सिमम तो आप कितना भी कर लो, 10 भी ला लो। बट अगर आपको डिसेंट, आपको ये चाहिए कि आप किसी भी कंपनी में रजिस्टर करने से रहो ही ना पीछे, मतलब, तो आपको 8+ मेंटेन करोगे, तो आपको कोई भी कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी, या फिर उसका क्राइटेरिया आप फुलफिल ना कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। ओके। सो दीदी, लाइक जब आप कॉलेज में थे, तो लाइक आप अपनी कॉलेज लाइफ कैसे मैनेज करते थे विथ स्टडीज़? लाइक आपके फ्रेंड्स थे, आपके फ्रेंड सर्कल थे? ऑफ कोर्स फ्रेंड सर्कल तो था ही, बट हाँ, मैनेज मतलब इन द सेंस बट बहुत आप, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो टाइम मैनेजमेंट, हाँ, मतलब एकेडमिक्स, फ्रेंड्स। 9 to 5, एक्चुअली 9 to 5 क्लासेस होते थे। तो 9 to 5 क्लासेस करते थे, क्लास में भी वही फ्रेंड्स थे ही। जो अलग सेक्शन के फ्रेंड्स थे, उनसे 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत टहलते टुलते मिल लिया, क्योंकि कॉल हॉस्टल का टाइम था नहीं, 7 o'clock के बाद हॉस्टल बंद हो जाता था, विंटर्स में तो और जल्दी हो जाता था।
तो फिर 7 ओ क्लॉक रूम पे पहुँच के फिर आप अपना स्टडीज़ वगैरह करो। तो एक तरह से देखा जाए तो वो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपके पास 5 से 7 2 ही आवर्स हैं, आप उन्हीं में ही टाइम पास कर सकते हो, फिर आप अपने रूम पे जाके तो बाहर आ ही नहीं सकते, तो फिर आप पढ़ ही सकते हो, एक ही ऑप्शन है और वो अच्छा भी है। हाँ, ये तो है। एंड लाइक हुँ। दीदी, लाइक आज मैं सुबह ही जब अपना व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था तो लाइक मोस्टली मेरे से सीनियर्स, मेरे जो व्हाट्सएप में सीनियर्स ही ऐड है और प्रोफेसर लोग ऐड हैं, तो मैं मतलब उनका स्टोरी देख रहा था, तो उसमें आज सब लोग नोटिफिकेशन में डाल रहे थे कॉन्वोकेशन। राइट, 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 राइट। हुँ। एग्जैक्टली, आपको भी मैसेज आया होगा ना? नहीं, अभी कॉन्वोकेशन क्या होता है ना, आपकी डिग्री के 1 साल बाद होता है, मतलब हमें 2025 में होगा। अ, ओके। 2023 बैच का इस बार हुआ होगा कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन ऐसे एक 1 हाँ। ईयर लेटर होता है। ओके, सो लाइक अभी आपका कॉन्वोकेशन हुआ नहीं, नेक्स्ट ईयर होगा। हाँ। सो अभी आप एलपीयू कैंपस कब वापस आओगे? आई डोंट थिंक मोस्टली मेरा आना होगा, मैं यहाँ पे अभी इंटर्न कर रही हूँ, तो घर से ही। अच्छा, अभी सो आप इंटर्नशिप कर रहे हो? हाँ, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो किस कंपनी में? क्योंकि क्या? सॉरी? या किस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो? मैं एससी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अभी काम कर रही हूँ, जो बड़ौदा की ही कंपनी है। तो ओके। जहाँ मैं रहती हूँ तो वहीं पे मुझे इंटर्न मिल गया लकीली, तो यहाँ पे मैं इंटर्न कर रही हूँ अभी। उसके बाद जॉइनिंग आएगी तो तब जॉइनिंग। ओके, नाइस। लाइक इससे पता चला लाइक आप शांति से नहीं बैठ सकते हो। कुछ ना नहीं, कुछ। एक्चुअली अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उससे थोड़ा कुछ सीख ही लेंगे, तो इसलिए। एग्जैक्टली, लाइक दीदी आप हमें बताना, जैसे अभी हम सेकेंड ईयर में हैं, लाइक अगर हुँ। हम लोग को इंटर्नशिप करना है तो कैसे अप्रोच करें, कहाँ अप्लाई करें, आप किस अ, टाइप की इंटर्नशिप करें? इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए आई फ़ील इंटर्नशाला अच्छा है। और फिर हम्म। ऐसा भी होता है, कई फ्रेंड्स के फादर या ब्रदर या कोई भी रिलेटिव्स फॉर दैट मैटर कंपनी में होते हैं, तो आप उनसे इंटर्न का रेफरल मांग सकते हो। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट सोर्स। आप वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए रेफरल्स मांग सकते हो। एंड एलपी हमें प्रोवाइड करता है, लास्ट सेम में आप इंटर्न कर सकते हो। कॉलेज आपको ओजीटी अप्रूव कर देता है, अगर आपकी अगर वेरिफिकेशन, ऑफ कोर्स वेरिफिकेशन के बाद। तो हम्म। इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आप वैसे पूछना चाहो तो इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन से अप्रोच कर सकते हो, रिलेटिव्स के थ्रू अप्रोच कर सकते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, उस तरह से। अच्छा, इंटर्नशिप तो बेस्ट ही है, उसके बाद उसके साथ साथ लिंक्डइन भी बेस्ट है लिटरली, लाइक मैंने भी आपको हाँ, लिंक्डइन में ही कनेक्ट किया। हाँ। फाइनली अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं। हुँ, ओके, राइट। so let's bind it up, Didi. Okay, या so ऑफ कोर्स। thank you so much for giving me your valuable time. थैंक यू सो And मच। जब आप यहाँ कैंपस में आओगे तो फॉर श्योर हम लोग एक ऑफ लाइन भी पॉडकास्ट जरूर करेंगे, जो मैं जहाँ पे ऑफ करता कोर्स, हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जब आऊँगी तब आपको पक्का बताऊँगी कब आ रही हूँ। ओके, थैंक यू दीदी, आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट यू। अच्छा, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन था, हाँ कैन जी, आई आस्क? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके दीदी, लाइक इन फ्यूचर, लाइक इफ अगर आपसे कोई कनेक्ट है या किसी से भी कोई भी कनेक्ट है जो बड़े बड़े बिग जॉइंट कंपनीज में है, हुँ, आपके जूनियर्स, अगर उनको रेफरल चाहिए तो हुँ। बिफोर आस्किंग फॉर रेफरल उनको मतलब क्या क्या चीज़ आना चाहिए, आप एक बार अ, बता दो। बेसिकली अगर आप रेफरल माँग रहे हो तो आप कोई ना कोई जॉब एप्लीकेशन देख के ही माँग रहे हो। तो उसकी जो हम्म। रिक्वायरमेंट होती है, उस रोल की जो एक रिक्वायरमेंट होती है, आपको वो अच्छी तरह आना चाहिए, ताकि ऑफ कोर्स। और रेफरल इज़ सच अ थिंग, आपको रेफरल माँगना आना चाहिए, उसका भी एक तरीका है। प्रोफेशनली आप किसी से भी रेफरल माँग रहे हो तो आपको कोई मना नहीं करेगा अगर वैकेंसी है तो। Thank you so much, Didi. And yeah, this was all about this podcast. And please subscribe to my channel, guys. And मैं दीदी का लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. If you want to connect गौरी शर्मा दीदी, you can connect her in her LinkedIn. So तब तक के लिए stay tuned, stay happy and stay healthy. And thank you so much, Didi, for coming in my podcast and for giving me your valuable time. थैंक यू सो Okay, मच। bye. बाय।